بیک ٹو لیڈیز لاؤنج. اس سے پہلے ہم اپنے ہیلتھ سیگمنٹ کی طرف چلیں. آج میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ آج ہم لوگ ڈاکٹر عبدالصمد سے بات کریں گے کہ سمدہ ہیلنگ جو ہم لوگ اتنے دنوں سے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے جائے تھے, دس از نون ایز دا ورلڈز موسٹ پاورفل ہیلنگ. تو یہ ایسا کیوں ہے, اس کا ساری ڈیٹیل میں ہم آج ڈاکٹر عبدالصمد سے بات کریں گے. ان کی بک بھی ہے جس کا نام ہے دا سیکرٹ ورلڈ آف ہیلنگ انرجیز, اس پہ بھی ہم بات کریں گے آج. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھا, ٹھیک ٹھاک. آپ لوگ کی ویسے عید کی تیاریاں جا رہی ہیں؟ عید کی تیاریاں آپ کو کپڑوں سے لگ رہے ہیں؟ آج مجھے سبھی اچھے مطلب لگ رہا ہے کہ عید قریب. اب آپ کی آنکھوں میں عید ہے تو اس وجہ سے ہر ایک آپ کو لگ رہا ہے جیسا کہ عید ہے نا. عید آنے والا ہے اور ظاہر ہے 5 دن رہ گئے میرے خیال. کتنا دن رہ گئے؟ مجھے پتہ ہے عید آنے والی, لیکن میں ایکچولی بہت کنفیوزڈ ہوں کہ عید کے لیے زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا بیلنس رہنا چاہیے, کیونکہ حالات اتنے کوئی خاص حالات ایسے ہے. ایک ہی تو خوشی ملتے ہیں. بالکل, اصل میں ہم لوگ خوش تو ہوتے ہیں کہ عید آ رہی ہے, اوبویسلی ہمارے مسلمانوں کی تو ایک ایونٹ ہے عید, لیکن پھر وہی ہے کہ حالات کا سن کے بندہ ڈپریس بھی ہو جاتا ہے. تو ایک مکسڈ. مگر آئی تھنک اس کا کنکلوژن یہ ہوگا کہ اگر ہم اپنی عید سب کے ساتھ شیئر کر سکیں, جو ہم جو غریب ہیں, جو نہیں افورڈ کر سکتے, ان کے ساتھ اگر ہم شیئر کریں تو شاید اس طرح سے ہمیں بھی ایک سکون ملے گا عید سیلیبریٹ کرنے کا. بالکل بالکل کرنی چاہیے ہمیں. جو غریب لوگ ہیں اس کے ساتھ دینے چاہیے, بیچاروں کے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ منانی چاہیے. تو پھر عید ہو جاتا ہے. اور جو اگر کہیں پریشانی بھی ہیں تو وہ انسان اتنا فیل نہیں کرتا ہے کہ چلو کچھ تو ہم نے اچھا کیا. جب آپ کچھ سوسائٹی کو دے رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو ایک مینٹل سکون ملتا ہے کہ چلو میں کچھ کر تو رہی ہوں یا کچھ کر تو رہا ہوں زندگی میں. تو آپ مجھے آج بتائیں کہ سمدہ ہیلنگ کے اوپر ہم آج کیا بات کرنے والے ہیں. جی بالکل, سمدہ ہیلنگ انرجی. کل ہم نے بات کی تھی کہ سمدہ کے جو سکولز ہے, سمدہ ہیلنگ انرجی ایک ہیلنگ فورس ہے, اور یہ ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی اسے کہتے ہیں. اور یہ کرونک ڈیزیز جو فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے, کیور ہوتے ہیں, ٹھیک ہوتے ہیں اس سے. یعنی یہ کام کرتے ہیں, بہترین کام کرتے ہیں. تو اس کے لیولز ہیں آگے, لیول 1 ہے, لیول 2, لیول 3, 5th 7 8 تک 9 تک ہم پڑھاتے ہیں. اچھا, ویسا تو سمدہ کے 14 لیول ہیں. اس میں 14 لیولز میں سے کچھ کے ہم یہاں پر بتا سکتے ہیں, ذکر کر سکتے ہیں کہ مثلا لیول 1 سے کون سی بیماریاں جو ہوتے ہیں. جی بالکل, جو بیسک لیول ہے اس سے کون سی بیماریاں کیور ہوتی ہیں. اس سے معمولی بیماریاں کیور ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی کرونک ڈیزیز بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اس سے. یہ جس طرح کے سر کا درد ہو گیا, سر کا درد ہو گیا, کمر درد ہے, کندھوں کا درد ہے, کچھ لوگوں کے جو پریشر ہوتے ہیں, لوگوں پہ اسٹریس ہوتے یا کندھوں پہ یا تھکان ہوتے, تھکاوٹ محسوس ہوتے لوگوں کو, کوئی نہ کوئی وجہ ہوتا ہے تھکاوٹ کا بھی, اور یہ اسٹریس کا بھی کوئی وجہ ہوتا ہے, ڈپریشن کا بھی کوئی وجہ ہوتا ہے. بیرونی جو وجوہات ہیں نا, بیرونی وجوہات ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں, ٹینشن, ڈپریشن اور یہ اسٹریس, یہ چیزیں. تو اس وجوہات کی وجہ سے انسان یہ سکون میں لے آتے ہیں, ریلیکس کر دیتے ہیں, عصبی ریلیکسیشن ملتے ہیں, اور ہمیں ذہنی دماغی ریلیکسیشن ملتے ہیں. جب یہ ریلیکسیشن مل جاتے ہیں انسان کو تو پھر وہ قابو پاتے ہیں اس بیماریوں پہ جو مقصد کرونا, جو بہت ہمیں گمبھیر بیماریاں جو ہے اس سے نجات دیتے ہیں. تو اس طرح کے پھر ہیلپ کرتا ہے لیول 2. لیول 1 جو ہے وہ جسمانی بیماریوں میں زیادہ تر کارآمد ہے. لیول 2 جو ہے وہ ہے نفسیاتی بیماریوں میں. لیول 2 بالکل. یہ جیسا کرونک ڈیزیز, جیسے ٹینشن, ڈپریشن, ایسی بیماریاں ہیں تو اس سے کیور ہوئے تقریباً. اس سے کرونک ڈیزیز جو ہے, معمولی بیماریاں تو 99% یہ کام کرتا ہے اس میں, تقریباً 95-99% کام کرتے ہیں اس میں. اور جو کرونک ڈیزیز ہے اس میں 50% ایسا 50% تقریباً جو آگے جو لیولز ہے وہ پھر اس میں آتے ہیں, جس طرح لیول 7 ہے, 8 ہے, 6 ہے, 5th ہے, وہ پھر بالکل جو کچھ بیماریاں کرونک رہ جاتے ہیں وہ اس سے علاج ہوتے ہیں. کرونک ڈیزیز میں کون کون سی ڈیزیزز شامل ہوں گی؟
देखिए, नफसियाती बीमारियों में तो आजकल स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, फोबिया है, एंजाइटी है, ये सबसे बदतरीन बीमारियों में आते हैं जो इंसान को बदतरीन लेवल तक ले जाता है, बहुत बुरी तरफ ले जाता है इसको। इसमें फिजिकल बीमारियां भी आती हैं, जैसे हम कहते तो यही है कि इसके जो फर्स्ट 4 लेवल हैं वो बेसिक लेवल कहलाता है। फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट आते हैं उनको वो ही करवाते हैं, लेकिन इसमें इस तरह इतनी क्रॉनिक बीमारियां भी, जैसे हमारे पास लास्ट जो हमारी वर्कशॉप हुई उसमें एक बच्चा था, तकरीबन 14-15 ईयर उसकी एज थी और उसकी पूरी बॉडी के मसल्स वीक थे, चल नहीं सकता था। उसने जस्ट 1 से 4 लेवल किए और नेक्स्ट जो हमारी वर्कशॉप हुई उसमें फिर उनकी पूरी फैमिली आई, उनकी मदर ने किया, सिस्टर ने किया, अभी जो समर कैंप हुआ था समर वेकेशन में उसके जो छोटे बहन भाई थे उन्होंने भी किया। तो उस वर्कशॉप में वो खुद चल के डॉक्टर साहब के पास आया और उसकी मदर कहती है कि अब हम इतना खुश होते हैं, उनकी फिर पूरी फैमिली ने आके एडमिशन लिया कि अब वो खुद चल के वाशरूम चला जाता है, खुद चल के घर से बाहर चला जाता है। पहले वो उसको व्हील चेयर पे लेके आते थे या दोनों साइडों पे बाजुओं से उनकी फैमिली मेम्बर्स ने उनको पकड़ा हुआ होता था। एक और हमारी स्टूडेंट हैं, उनकी बैकबोन का ही मसला था, जब वो हमारे पास आई तो उनको स्वेलिंग थी पूरी, अच्छा, इस साइड पे भी स्वेलिंग थी, यहाँ पे भी, ये बैकबोन पे भी। वो कहते हैं कि मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हैं और मैंने कोई भी ऐसा न्यूरो सर्जन नहीं छोड़ा जिसने, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी ओपन सर्जरी ही होगी। उन्होंने साथ योगा किया, 3 मंथ का उन्होंने योगा किया और समदा किया, तो भी वो माशाल्लाह से बिल्कुल नॉर्मल अपनी लाइफ गुजार रही हैं और अपने जो है अपनी रूटीन को जारी रखे हुए। इसमें कहते तो हम यही है कि ये मामूली किस्म की बीमारियों के लिए, लेकिन इसमें क्रॉनिक बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। अच्छा, बिल्कुल। जब लेवल्स की इसमें बात करते हैं तो ये जो लेवल्स के थ्रू हम गुजरते हैं, तो दूसरा लेवल नफ्सियाती था, तो ये हम मेडिटेशन के थ्रू समदा हीलिंग की तरफ जाते हैं। मतलब इसमें मेरा सवाल है कि हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं समदा हीलिंग के अंदर? बिल्कुल। फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं या इसको कहते हैं अट्यूनमेंट या इसको कहते हैं होप्स। तो होप्स का जो प्रोसेस है वो इस तरह है कि हमारे अंदर कुछ लहरें हैं, कुछ हमारे ब्रेन वेव्स हैं, कुछ हमारे जो कॉन्शियस सब कॉन्शियस है, कहीं ना कहीं वो इनविजिबल एनर्जी है जो नज़र नहीं आता है, अनसीन पावर है। तो वो कहाँ है, कैसा है, हम कुछ ऐसे मेथड्स को अपनाते हैं, कुछ ऐसे तरीक़ों को अपनाते हैं जो उसमें एक इंसान के जो वो एनर्जी लेवल है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। उस फ्रीक्वेंसी जब हाई हो जाते हैं तो हमारे कनेक्शन हमारे उस पावर के साथ जो हीलिंग फोर्स है उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बन जाते हैं। तो जब कनेक्ट हो जाते हैं उसके साथ, ये पावर हमें हाई फ्रिक्वेंसी में हमारी बॉडी में आते हैं और हमें महसूस भी होते हैं। अच्छा, वाइब्रेशनल पावर महसूस होते हैं हमें। अच्छा, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अच्छा, एक ज़रिए से बिल्कुल सुकून है ये सुख इसकी है। एक मिसाल मैं आपको ये इस तरह दे सकती हूँ कि जैसे हम मोबाइल पे बात करते हैं, ये भी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा होता है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को लो कर देंगे तो भी हम बात नहीं कर पाएंगे, अगर हाई कर देंगे तो भी बात नहीं कर पाएंगे। हम जब मेडिटेशन की हालत में बैठते हैं तो हमारी जो बॉडी से एनर्जीज निकलती हैं वो भी एक किसी ख़ास फ्रीक्वेंसी के साथ जाके कनेक्ट होती हैं। तो इंसानी बॉडी को अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाया है कि हमारी बॉडी, जैसे हम धूप में बैठते हैं तो धूप से हम विटामिन डी अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। इसी तरह से हम हीलिंग पावर भी अपनी बॉडी में स्टोर कर सकते हैं और उसी से जब आप मेडिटेशन की हालत में बैठते हैं और फिर कुछ एक्सरसाइज होती हैं, 3 से 4 आवर की क्लास होती है, तो उसमें आप किसी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट होते हैं, उस पॉजिटिव एनर्जी को अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं, उसी से आप अदर्स का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और अपनी तमाम बीमारियों का भी, चाहे वो फिजिकल हो या साइकोलॉजिकल हो। आप खुद भी तो आप उस दिन बता रहे कि समदा हीलिंग के थ्रू आपने अपने आप को क्योर किया था। हाइट्स आपका डर था ना? हाइट से डर था और मेरे बैकबोन का मसला था, ज्यादा जो मसला था वो मेरी बैकबोन का था। आप व्हेन यू वर गोइंग थ्रू दिस ट्रीटमेंट, जब आप कर रही थी समदा हीलिंग, तो उस वक्त क्या आप जब मेडिटेशन की कैफियत में जब हालत में बैठी थी तो क्या आपकी कैफियत? ये सिर्फ जब वर्कशॉप होती है तब आपको 3 से 4 आवर देने पड़ते हैं, उसके बाद जस्ट आपको 10 मिनट अपनी हीलिंग करनी होती है। अच्छा। 10 मिनट आप जस्ट उसके साथ कनेक्ट हो, हील करें और उसको ऑफ कर दें। उसके बाद इतनी देर आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं तो वैसे भी ज़्यादातर अपनी हीलिंग नहीं करती हूँ। अगर कोई कॉल करता है, जैसे हमारे स्टूडेंट हैं कि हमें हीलिंग की ज़रूरत है, तो मैं उनको सेंड करती हूँ। जब आप किसी का इलाज कर रहे होते हैं तो आपका खुद भी हो रहा होता है, क्योंकि आपके हाथों से एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र हो रही है। तो पहले आप खुद हील होते हैं,
फिर अगले बंदे को आप हील कर रहे होते हैं। मुझे मेरी जो बैकबोन थी उसमें ऐसे फील होता था जैसे एनर्जी का कोई करंट नहीं चल रहा है, उसके अंदर चल रहा है, इस तरह से फीलिंग्स होती थी। और अभी भी जब मैं किसी को एनर्जी देती हूँ तो मेरे हाथ जो हैं वो बहुत हीट अप हो जाते हैं, क्या आप एनर्जी फील होती है। जो जैसे आप जब एनर्जी किसी को दे रही होती हैं तो क्या आप माइंड पावर होती है? कुछ भी नहीं आपको इमेजिन करना होता कि आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करें कि हम इसको हील कर रहे हैं, एनर्जी आएगी, इसको हील करेगी, कुछ भी नहीं। सो मैं आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, ड्रॉ करते हैं, माइंड को कनेक्ट करते हैं उस फोर्स के साथ। ये सादा यानी जो हम सादा ज़बान में इसको हम क्या कह सकते हैं, कनेक्शन के राब्ता कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में हम इसको कह सकते हैं कि मैं जैसा कि हमने दुआ किए, स्पिरिचुअलिटी में हम यानी दुआ की, हमने अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली और बस बात खत्म, अल्लाह ने शिफा दे दी। स्पिरिचुअलिटी में हम ये कह सकते हैं रूहानियत में। और हम साइंस के हवाले से, जो मेटाफिज़िकल साइंस के हवाले से, जिल साइंस के हवाले से, तो ये एक कनेक्शन है हीलिंग पावर के साथ, शिफाई ताकतों के साथ जो हमारे इर्द गिर्द और यूनिवर्स में मौजूद है। अच्छा, तो अभी जैसे मैंने एक और सवाल पूछना था और एक सीरियस सवाल है कि समदा हीलिंग जो होती है, आपने कहा ना कि इट्स लाइक अ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पीपल, क्योंकि एनर्जी पास ऑन करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान बीमार हो और वो दूर हो, वो आपके पास नहीं आ सकता, तो फ़ोन के ज़रिए कुछ हो सकता है? बिल्कुल होता है। हमारे जो लेवल 4 है इसका, उसमें ये होता है कि अगर आप यहाँ पे कराची में हैं, कोई आपका रिलेटिव है या फ्रेंड है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, यहाँ तक कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई है तो आप यहाँ से बैठ के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये एनर्जी इंटेलिजेंट है। जैसे आप एक पेन किलर लेते हैं, उसको पता होता है कि बॉडी के किस हिस्से में पेन हो रहा है, मुझे वहीं पे जाके हील करना है। उसी तरह इस एनर्जी को भी पता होता है कि तकलीफ़ कहाँ पे है। अगर आपने फिर इसके जब एडवांस लेवल पे जाते हैं, बेशक आपने उस शख्स को नहीं देखा, नहीं उससे बात की, आप किसी भी शख्स के, बल्कि हमारे हीलिंग कर सकते हैं आप दुनिया के किसी भी कोने में। डॉक्टर साहब के जो स्टूडेंट हैं वो ऐसा भी करते हैं कि जैसे कोई बम धमाका होता है या कोई इस तरह के लोग होते हैं तो वो ग्रुप हीलिंग उनको सेंड करते हैं। अच्छा, एक साथ कि वो मेंटली तौर पे थोड़ा रिलैक्स रहें या अपनी तरफ से जो इंसान कर सकता है अच्छा पॉजिटिव, वो करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक लिस्ट होते है हर शाम को, हमारे पास जो भी जो स्टूडेंट के पास होते हैं एक लिस्ट होते हैं, तो शाम को डिस्टेंस हीलिंग को सोने से पहले एक अच्छा काम करना होता है। समझा में हम ये कि दिन में एक अच्छा काम लाजमी है। अच्छे काम होने से, वैसा सारे काम अच्छे होने चाहिए, हर लफ्ज़ अच्छे होने से कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर दिन में इंसान समझ ले कि उन्होंने कोई नहीं किए है तो वो एक अच्छे बेहतरीन काम हमारे साथ ये है कि हमारे नियत इंसानियत के लिए, बशर के लिए सोने से पहले, ताकि हमारे नींद भी अच्छे हो और हम ये समझे कि हमने कोई अच्छा काम किए, चाहे उसे कोई क्योर हो ना हो। हम क्या करते हैं कि हम दुआ करते हैं सोने से पहले, हम नींद से जाने से पहले हम दुआ करते हैं अल्लाह से, और बहुत से लोग ठीक हो जाते हैं, कांटेक्ट करते हैं कि हाँ हम ठीक हुए। बल्कि ऐसा है कि जिसके साथ हमारे कांटेक्ट नहीं भी है, हमने उनका लिस्ट बनाया तो उन्होंने उस वक्त महसूस किया कुछ चीज़ें कि हमने सुकून महसूस किए, हमने कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी महसूस किए, रिलीफ महसूस किया, ऐसा महसूस किया जैसा कि आप हमारे साथ हैं। ये स्टूडेंट्स के तजुर्बात में आपको बता। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जब